Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this, we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में 30 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिपब्लिक डे की। 26 जनवरी को हमने रिपब्लिक डे ऑब्जर्व किया, राइट। 26 जनवरी को क्यों ऑब्जर्व करते हैं हम जानते हैं। 15 अगस्त को तो हमारा आज़ाद हो गया था इंडिया, राइट। 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे लागू हुआ था, ठीक। तो अभी 2024 में हमने कौन सा एडिशन ऑब्जर्व किया रिपब्लिक डे का, तो ये 75th एडिशन था रिपब्लिक डे का जो हमने ऑब्जर्व किया। चीफ गेस्ट यहाँ पर कौन बने थे, इमैनुअल मैक्रोन, जो कि प्रेसिडेंट हैं कहाँ के, फ्रांस के। एंड याद रखेंगे अभी यहाँ पर पद्मा अवार्ड से भी सम्मानित किया, जिसमें से 4 फ्रांस के नेशनल्स थे जिनको हमने यहाँ पे पद्मा अवार्ड से भी सम्मानित किया। अ टोटल ऑफ 132 इंडिविजुअल्स वर अवार्डेड विद पद्मा अवार्ड्स, ठीक। फिर याद रखेंगे 75वां रिपब्लिक डे था। इसका जो इवेंट हुआ था और जो परेड हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, कर्तव्य पथ पर हुई थी, जिसको पहले हम राजपथ कहते थे। एंड यहीं पे याद रखेंगे जो फ्लैग अनफर्ल किया गया इंडिया का, वो किनके द्वारा किया गया, द्रौपदी मुर्मू मैम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसी के दौरान यहाँ पे आपको थीम याद रखनी है। थीम क्या रहेगी रिपब्लिक डे की, विकसित भारत। विकसित भारत मतलब डेवलप्ड इंडिया, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ एक दो चीज़ और याद रखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर राजनाथ सिंह के द्वारा एक 75 रुपीज़ का सिल्वर कमेमोरेटिव कॉइन एज वेल एज एक 75 रुपीज़ का सिल्वर कॉइन यहाँ पे एज अ कमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च किया गया, और एक पोस्टेज स्टैम्प भी यहाँ पे लॉन्च की ऑफ द 75th रिपब्लिक डे, करेक्ट, इस सेलिब्रेशन को मार्क करने के लिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम ने यहाँ पे फ्लैग अनफर्ल किया। थीम क्या रहेगी, विकसित भारत। एंड यहीं पे याद रखेंगे भारत लोकतंत्र की मतरूका, करेक्ट, ये आपकी थीम रहेगी। इसी के साथ साथ याद रखेंगे 75 रिपब्लिक डे पे एक 75 रुपीज़ का सिल्वर कमेमोरेटिव कॉइन को भी यहाँ पे लॉन्च किया गया, जो कि इंडियन गवर्नमेंट मिंट के द्वारा मुंबई महाराष्ट्र में मिंट किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस किया $100 मिलियन का बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है आपका प्लास्टिक पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में, जो पैसा एलोकेट किया जाएगा इस बॉन्ड से, वो प्लास्टिक पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में काम आएगा, करेक्ट। और ये जो बॉन्ड का टर्म रहेगा 7 साल का रहेगा, एंड यहाँ पे एश्योर्ड 1.7% का रिटर्न देने की बात की गई, करेक्ट। ये आपका 100% यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहेगा। AAA रेटेड ये आपका बॉन्ड रहेगा बाय S&P स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स के द्वारा। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये जो बॉन्ड है ना, 2 प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी घाना में एंड इंडोनेशिया में लॉन्च किए जाएंगे विद दिस
बॉन्ड एंड इस बॉन्ड को कहाँ पे लिस्ट किया जाएगा, लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज पर इसको लॉन्च किया जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि ये जो बॉन्ड है $100 मिलियन का प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्शन लिंक्ड बॉन्ड, ये प्लास्टिक पॉल्यूशन को टैकल करने का काम करेगा। लॉन्च किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और वर्ल्ड बैंक ऑप्शन में ना हो तो IBRD होगा, ये आम है वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इनके द्वारा ये 7 साल का प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन लिंक्ड बॉन्ड को लॉन्च किया गया। $100 मिलियन वैल्यू रहेगी। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो प्रेसिडेंट कौन है, अजय बंगा। फिर वाशिंगटन DC हेडक्वार्टर रहेगा। 1944 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और 189 मेंबर्स हैं वर्ल्ड बैंक में। नेक्स्ट आता है फिर आपका REC एंड NIIFL, इन दोनों ने एक MOU साइन किया ऑन फंडिंग सॉल्यूशन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ये दोनों मिलके रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को ग्रो करने का काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलप करेंगे ताकि हम यहाँ से जनरेट कर सकें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को। करेक्ट। अगर बात करें REC की आपकी एक महारत्ना है, महारत्ना CPSE, दैट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। एंड इन MOU के अंडर हम देखेंगे जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है ना, उसमें फंडिंग भी लगती है, काफ़ी फंडिंग लगती है। करेक्ट। और हम चाहते हैं कि इंडिया हम एक ट्रांजिशन करें टू रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल सेक्टर। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगेगा, पैसे भी लगेंगे, फंडिंग भी होगी, तो वो ये दोनों मिलकर यहाँ पे देखेंगे। करेक्ट। फिर इसी के साथ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन के REC के, वो है विवेक कुमार देवांगन, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, एंड इसको 1969 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन को रीब्रांड कर दिया इन्होंने एज BOB कार्ड लिमिटेड, राइट, BOB कार्ड लिमिटेड। और इनकी टैगलाइन क्या रहेगी, क्रेडिट री-इमेजिन्ड। बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड लिमिटेड एक NBFC है जो 1994 में इस्टेब्लिश की गई थी। इनका नया लोगो भी याद रखेंगे, बड़ौदा से याद रखेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड लिमिटेड, राइट। फाइनेंशियल सॉल्यूशन का नया रीब्रांड क्या हो गया, नेम BOB कार्ड लिमिटेड। ठीक है। फिर ये जो बॉब कार्ड है ये ऑफर करेगा वेरियस कस्टमर्स को, कमर्शियल क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड कराया जाएगा। देन डिफेंस पर्सनल जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड एंड असम राइफल्स को यहाँ पे भी ये कैटर करेंगे। नेक्स्ट आता है हाउ मैनी पद्मा अवार्ड्स वर रिसेंटली प्रेजेंटेड इन 2024। इंपॉर्टेंट है, 132 पद्मा अवार्ड से यहाँ पे अभी सम्मानित किया गया। द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा इन अवार्ड्स को प्रेजेंट किया गया था, राइट। इन 132 में से हमने देखा था 6 फॉरेन इंडिविजुअल्स थे, जिसमें से 4 फ्रांस के थे, 1 ताइवान और 1 इंडिविजुअल था जो कि पेपुआ न्यू गिनिया से हैं। ठीक। फिर यहीं पे याद रखेंगे तो यहाँ पे चीफ गेस्ट कौन थे, जब ये प्रेजेंट किया गया रिपब्लिक डे पे, तो इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट थे। अगर इसमें भी पद्मा अवार्ड्स की बात करें तो आप देखेंगे पद्मा विभूषण एंड पद्माश्री। पद्मा विभूषण की बात करें तो 5 पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया 5 इंडिविजुअल्स को, 17 पद्मा भूषण से एंड 110 पद्माश्री से। इसमें से अगर याद रखेंगे नो पोस्टह्यूमसली यहाँ पे अवार्ड दिए गए। पोस्टह्यूमसली मतलब आफ्टर देयर डेथ उन लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया गया पद्मा अवार्ड से। नेक्स्ट, हु हैज बीन नेम्ड एज द मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर। एक तो बने हैं ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023, एक बने हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर। अगर मेंस ODI की बात करें तो ये रहेंगे विराट कोहली, और अगर मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करेंगे तो वो रहेंगे सूर्य कुमार यादव। ICC के द्वारा अभी एनुअल अवार्ड्स प्रेजेंट किए गए 2023 के, उनके दौरान इनको यहाँ पे इनसे सम्मानित करा गया। आप देख सकते हैं, अगर मैं बात कर रहा हूँ, विराट कोहली वन द मेंस ODI वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 एंड सूर्य कुमार यादव वाज स्worn इन एज द और हैज बीन नेम्ड एज द ICC मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023। मार्क करके चलेंगे। ICC की अगर मैं बात करूं, चेयरमैन कौन है, ग्रेग बार्कले। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, दुबई UAE में, एंड इसको 1909 में इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट, हु इज सेट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान फॉर द सेकेंड टाइम, शेरिंग टॉगबे। आप इनको यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, शेरिंग टॉगबे, ये सेकेंड टर्म के अभी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे भूटान के। इससे पहले याद रखेंगे 2013 से लेके 2018 तक ये प्राइम मिनिस्टर थे फर्स्ट टाइम। फिर 2018 से 2023 तक कौन थे यहाँ पर, वो थे लॉटे शेरिंग यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। और अब ये लॉटे शेरिंग को
रिप्लेस करेंगे टू बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान। कब से कब तक? 2023 से लेके 2028 तक, राइट। ये यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रहेंगे फॉर द थर्ड टर्म, मार्क करके चलेंगे। एंड इन्होंने अभी 47 में से 30 वोट्स यहाँ पे जीत ली टू बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर। फिर भूटान की बात करें तो याद रखेंगे भूटान 2008 के बाद इन्होंने एब्सोल्यूट मोनार्की से ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पे आ गए हैं। 2008 के बाद 4 बार यहाँ पर ये इलेक्शन करा चुके हैं अभी तक। भूटान की कैपिटल की बात करें तो थिम्पू रहेगी, थिम्पू कैपिटल रहेगी भूटान की। मूविंग ऑन, नीतीश कुमार स्वॉन इन एज द बिहार चीफ मिनिस्टर फॉर विच टाइम? तो नीतीश कुमार ये जेडीयू पार्टी से बिलोंग करते हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रेसिडेंट हैं ये नीतीश कुमार। एंड ये इन्होंने ओथ ली एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर द 9th टाइम। 9वीं बार ये बिहार के यहाँ पे चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं, करेक्ट। इन्होंने बीजेपी के साथ अभी एक अलायंस बनाया, बीजेपी एनडीए अलायंस, करेक्ट। और इन्होंने नई गवर्नमेंट अभी फॉर्म की है बिहार में। एंड ये 9th चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, 9th टाइम, मतलब ये चीफ मिनिस्टर बन गए हैं ऑफ बिहार फॉर द 9th टाइम। 9th चीफ मिनिस्टर नहीं बने हैं बिहार के, लेकिन ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर द 9th टाइम, ठीक। फिर इसी के साथ आप देख सकते हैं नीतीश कुमार। एंड फिर यहीं पर सम्रत चौधरी एंड विजय कुमार ये यहाँ पे डेप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पे भी अपॉइंट किए गए। इनकी जो ओथ थी वो एडमिनिस्टर किसके द्वारा की गई? गवर्नर ऑफ बिहार। कौन है गवर्नर बिहार के? बिहार के गवर्नर कौन है जिन्होंने इनकी ओथ को एडमिनिस्टर किया? वो है राजेंद्र आर्लेकर जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एलआईसी को आरबीआई का अप्रूवल मिल गया कि अपना स्टेक एचडीएफसी बैंक में बढ़ा दें टू व्हाट? अभी एज ऑफ नाउ एलआईसी एज ऑफ जनवरी 2024 एलआईसी 5.19% शेयर होल्ड करता है एचडीएफसी बैंक में। एंड इनको आरबीआई से अप्रूवल मिल गया कि ये आने वाले टाइम में अपने स्टेक को 9.99% तक ले जा सकते हैं मैक्सिमम। ये देखो एकदम नहीं होता है कि एकदम इस कंपनी ने इतना स्टेक बाय कर लेगा, क्योंकि अभी एचडीएफसी की वैल्यूएशन आप देख रहे हैं स्टॉक वाइज भी गिरती जा रही है। एंड 100 चीज़ें होती हैं, तो धीरे धीरे वे अपने स्टेक को इंक्रीज करेंगे। जब उनको लगेगा कि हाँ ये राइट वैल्यूएशन है टू बाय द स्टॉक इन दिस कंपनी, तो वो धीरे धीरे बाय करेंगे। एंड इनको अप्रूवल मिल गया कि अब ये मैक्स टू मैक्स 9.99% तक अपना स्टेक इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट साइंस एंड टेक पर आते हैं। तो अभी रिसेंटली शैलेंद्र कुमार सिंह ये सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के, इन्होंने सराथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया फॉर दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के लिए, करेक्ट। कृषि भवन में इसको लॉन्च किया गया इन न्यू दिल्ली। एंड जो गवर्नमेंट की स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, उनको गवर्नमेंट की स्कीम्स जो आपके बेनिफिशरीज हैं उन गवर्नमेंट स्कीम्स के, उन तक ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन जा सके, इसका बेनिफिट इन स्कीम्स का, गवर्नमेंट की स्कीम्स का बेनिफिट पहुंच चुके, इसीलिए ये सराथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। सराथी की बात करें, इसको डेवलप किया गया था इन कोलैबोरेशन विद बैंगलोर कर्नाटका बेस्ड द नज इंस्टीट्यूट। इट इज़ एम्बेडेड विद लोक ओएस सिस्टम। एंड ये जो ऐप है ना, ये फंक्शन करेगी बेसिकली एक नेशनल टैक्स सॉल्यूशन, ताकि जो मोस्ट वनरेबल ग्रुप हैं, जैसे हमने देखा कि जिन लोगों को इन स्कीम्स का बेनिफिट नहीं मिल पाता या इनको बेनिफिट चाहिए स्कीम तक का, लेकिन उनके पास एक्सेस नहीं है, ये कैसे अवेल कर सके इन स्कीम को, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उस गैप को ब्रिज करने का ये सराथी मोबाइल एप्लीकेशन काम करेगी, ठीक है। सराथी की बात करें तो याद रखेंगे 6 स्टेट्स में ये इनिशियली डिप्लॉय किया जाएगा। एंड 24,000 से भी ज़्यादा हाउस होल्ड्स को इससे बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। मूविंग ऑन, इसरो ने अभी सक्सेसफुली डिप्लॉय किया मैग्नेटोमीटर बूम। जैसे अगर आपको याद हो, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, उसने अपने क्या क्या था, अपनी एक रिंग सी, गोल्ड से रिंग उन्होंने फॉल की थी, जैसे पंख से उसके फैला लिए थे। रीज़न क्या था उसका कि जो सन से रेडिएशन आ रहा है, सन से जो हीट आ रही है वो, और जो हीट हम स्टार से ले रहे हैं फॉर इंफ्रारेड रेडिएशन, उससे जो रीडिंग आएगी उसमें कोई डिफेक्ट ना आ सके सन की उससे, इसलिए उन्होंने सन को कवर करने के लिए यहाँ पे ये लॉन्च किया था विंग स्पैन। सिमिलरली जो आदित्य L1 सैटेलाइट है, उससे जो मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो रहा है, उसको मिनिमाइज करने के लिए मैग्नेटोमीटर बूम ये डिप्लॉय किया गया। 6 मीटर लॉन्ग ये मैग्नेटोमीटर बूम रहेगा। इससे क्या होगा, जो रीडिंग्स आएंगी हमारी, उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट फ्रॉम दिस आदित्य 1 सैटेलाइट, इससे इफेक्ट रीडिंग्स में हमें नहीं दिखेगा, राइट। तो रीडिंग्स इससे इंटरफेयर नहीं होंगी, जो जेन्युइन रीडिंग्स हैं हमें वो मिलेंगी, राइट। और आदित्य L1 की बात करें, इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, सन को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया था, सन की आउटर लेयर कोरोना को। एंड ये L1 पॉइंट पर है, L1 मतलब आदित्य L1 यहाँ पर क्या है, लैग्रेंज 1 पॉइंट पर ये रहेगा। एंड अभी हेलो ऑर्बिट में इसने अपना
मैग्नेटोमीटर बूम को अनफॉल किया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं ऑबिटरी के ऊपर। तो राणा तलवार ये पहले इंडियन एंड एशियन थे जिन्होंने हेड किया स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को। इनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 76। नेक्स्ट आ जाते हैं चंडीगढ़ के पहले हॉकी ओलंपियन सुखबीर सिंह गिल। इनका भी रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 48। 1975 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है बुक्स एंड ऑथर्स पे, मार्क करेंगे इसको। हिमंता बिश्वा शर्मा जो कि चीफ मिनिस्टर हैं असम के, इनके द्वारा रिलीज की गई फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम 1947 से 1971 ड्यूरिंग एन इवेंट जो कि लोक सेवा भवन में हुआ गुवाहाटी असम में। इसकी ये जो बुक है पब्लिश की गई बाय असम गवर्नमेंट एंड एडिटेड बाय एन एमिनेंट हिस्टोरियन डॉक्टर राजेन साइकिया। इसका सेकेंड और थर्ड वॉल्यूम आएगा जो कि 1972 से 2001 और 2002 से 2020 के बारे में असम की हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे बताएगा जो कि 2025 तक कवर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए ये जो बुक है ये बेसिकली क्या प्रेजेंट करेगी, असम का जो सोशो इकोनॉमिक लैंडस्केप है उसके बारे में, पॉलिटिकल इवेंट्स, हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे बताएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंपॉर्टेंट डेज पर। वर्ल्ड लेप्रोसी डे 28 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड लेप्रोसी डे। 2024 में ही हमने 28 जनवरी को ऑब्जर्व किया, वरना जनरली कब ऑब्जर्व करते हैं, लास्ट संडे ऑफ जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड लेप्रोसी डे। लेप्रोसी को ही हम हांसेन डिजीज भी बोलते हैं। एंड जो लोग इस डिजीज से इफेक्ट हो जाते हैं उनको सहानुभूति देने के लिए, उनको डिग्निटी, उनको बेसिकली इस डिजीज के बारे में अवेयर करने के लिए और उनको सहानुभूति देने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। करेक्ट, 2024 में 28 जनवरी को हमने ऑब्जर्व किया। 71st एडिशन था इस डे का एंड इसकी थीम याद रखेंगे, बीट लेप्रोसी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पर। 75th रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया 26 जनवरी को ऑब्जर्व किया, हम जानते हैं, मतलब 26 जनवरी को कौन सा एडिशन था, 75। फिर वर्ल्ड बैंक ने प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन लिंक्ड बॉन्ड्स लॉन्च किए $100 मिलियन वैल्यूएशन के, ताकि प्लास्टिक पॉल्यूशन को टैकल किया जा सके। REC एंड NIIFL इन्होंने MOU साइन किया ऑन फंडिंग सॉल्यूशंस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। देन बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशंस को रीब्रांड कर लिया गया एज बॉब कार्ड। पद्मा अवार्ड 2024 की बात करें तो प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया 132 पद्मा अवार्ड्स को। 5 पद्मा विभूषण थे, 17 पद्मा भूषण, 110 पद्मश्री, 9 लोगों को पोस्टह्यूमसली एंड 6 लोगों फॉरेन इंडिविजुअल्स थे जिनको पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया। ICC अवार्ड्स हुए 2023 के एंड विराट कोहली को यहाँ पे मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर एंड सूर्य कुमार यादव मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर यहाँ पे घोषित किया गया। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेरिंग टॉकबे यह भी सेकेंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे भूटान के। नीतीश कुमार ये बिहार के चीफ मिनिस्टर बने फॉर द 9th टाइम। समृत चौधरी एंड विजय कुमार यहाँ पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं बिहार के। देन LIC को अप्रूवल मिल गया RBI से कि अपना स्टेक 9.99% तक ले जा सकते हैं इन HDFC बैंक। शैलेश कुमार सिंह जो कि सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के, इन्होंने सराथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया ताकि जो गवर्नमेंट सर्विसेज, जो गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं वो उनके बेनिफिशियरी तक उनका लाभ पहुँच सके। इसरो इन्होंने डिप्लॉय किया मैग्नेटोमीटर बूम आदित्य L1 पर जो कि हेलो ऑर्बिट में है, ताकि जो मैग्नेटिक इफेक्ट है आदित्य 1 सैटेलाइट से उसका रीडिंग्स जो ये लेगा उस पर कम हो सके। देन राणा तलवार ये पहले इंडियन एंड एशियन है जिन्होंने हेड किया स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इनका निधन हो गया। चंडीगढ़ के पहले हॉकी ओलंपियन सुखबीर सिंह गिल, इनका निधन हो गया। एंड असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्वा शर्मा, इन्होंने पहला वॉल्यूम रिलीज किया ऑफ द बुक पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम 1947 से 1971 एंड वर्ल्ड लेप्रोसी डे 28 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो इस सेशन को अगर आपको पसंद आया फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर करेंगे एंड कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि आपके लिए डेली बेसिस पे मैं और बेटर कंटेंट ला सकूं। तो अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। नेम द एनुअल कमांड लेवल एक्सरसाइज दैट वाज रिसेंटली कंडक्टेड बाय ईस्टर्न एयर कमांड ऑफ द इंडियन एयर फोर्स फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर। क्या नाम रहेगा? 1 अक्टूबर से लेके इस एक्सरसाइज को भी कंडक्ट कराया गया। पूछा जा रहा है कि कब से कब तक थी। सबसे पहले तो ये याद रखेंगे, ये जो एक्सरसाइज थी ना आपकी, कब से कब तक थी? 30 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक हमने इस एक्सरसाइज को ऑब्जर्व किया। ईस्टर्न एयर कमांड के द्वारा इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था ऑफ इंडियन एयर फोर्स। पूछा जा रहा है कि इस एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा, तो ये है पूर्वी आकाश। पूर्वी आकाश इस एक्सरसाइज का नेम रहेगा, राइट। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था, नॉर्थ ईस्ट रीजन में, और लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था।
विच कंट्री हैज़ रिसेंटली इलेक्टेड हेवियर मिलेई एज द न्यू प्रेसिडेंट? तो अर्जेंटीना, राइट, अर्जेंटीना ने इलेक्ट किया हेवियर मिलेई को एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना, एंड ये एल्बर्टो फर्नांडिस को सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना. नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड लूक फ्रीडमैन एज द 23rd प्राइम मिनिस्टर? तो लूक फ्रीडमैन 23rd प्राइम मिनिस्टर बने हैं कहाँ के? लग्जमबर्ग के 23rd प्राइम मिनिस्टर. जेवियर बैटल को ये रिप्लेस करेंगे टू बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर. 22nd थे जेवियर बैटल, 23rd बन गए हैं लूक फ्रीडमैन. नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेस्ट बंगाल. तो वेस्ट बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट किए गए अभी रिसेंटली? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, दादा, जिनको हम प्रिंस ऑफ कोलकाता भी बोलते हैं, एंड वो है सौरव गांगुली. करेक्ट. ड्यूरिंग द 7th एडिशन ऑफ बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के दौरान, जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुई, वहां पर सौरव गांगुली को अपॉइंट किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेस्ट बंगाल, राइट. एंड इनको 2004 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स. एक चीज और याद रखेंगे, इससे पहले शाहरुख खान यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर थे वेस्ट बंगाल के सिंस 2012. नेम द कंट्री जिन्होंने रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट साइन किया इंडिया के साथ ताकि वो हम सप्लाई कर सकें एंड प्रोड्यूस कर सकें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल इग्ला एस मैन पैड्स. इग्ला एस एम पैड्स ये एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है जिसको प्रोड्यूस करने के लिए, डेवलप करने के लिए, जिसकी सप्लाई के लिए रशिया ने इंडिया के साथ यहाँ पर अभी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया. नेक्स्ट, इन विच सिटी 9th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका मित्रा शक्ति वॉज कमेंस्ड ऑन 16th ऑफ नवंबर. मित्रा शक्ति ये एक्सरसाइज का नाम है. 9th एडिशन रहेगा. इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में ये एक्सरसाइज की गई थी. अब आपसे यहाँ पे क्या पूछ लिया गया है? लोकेशन बताओ इस एक्सरसाइज का, ये कहाँ पर हुई थी? पुणे, महाराष्ट्र में. देखो, जब भी कोई भी एक्सरसाइज आती है ना, तो एक्सरसाइज का नेम, कंट्रीज के बीच में जिनके ये हो रही है, एडिशन क्या रहेगा, किस इंडियन नेवल शिप ने, एयरक्राफ्ट ने या किसी बटालियन ने पार्टिसिपेट किया इसमें, और लोकेशन. ये 5 चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, याद रखनी. विच बैंक हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड लक्ष्मी रामाकृष्णन श्रीनिवास एज द एडिशनल डायरेक्टर? तो ये है साउथ इंडियन बैंक, राइट. किस बैंक ने रिसेंटली अपॉइंट किया लक्ष्मी रामाकृष्णन श्रीनिवास को एज द एडिशनल डायरेक्टर? वो है साउथ इंडियन बैंक, राइट. और 3 साल के लिए इस पोजीशन में इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है. और ये जो आपका साउथ इंडियन बैंक है, ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? थ्रिसूर, केरला में. नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी फ्रॉम इंडिया हु हैज़ रिसेंटली इलेक्टेड एज द वाइस चेयर 2 ऑफ द UN पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स. तो किनको अपॉइंट किया गया? वो है हमारे CAG ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू. इनको अपॉइंट किया गया एज द वाइस चेयर ऑफ UN पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स फॉर 2024. ये मित्रा शक्ति सेम एक्सेस क्वेश्चन आ गया, तो 4th आंसर. नेक्स्ट, इन विच स्टेट 14th एडिशन ऑफ द इंडिया USA जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज वज्र प्रहार वॉज कमेंस्ड ऑन 21st ऑफ नवंबर 2023. तो 2023 में अभी एक एक्सरसाइज हुई थी वज्र प्रहार. किन 2 कंट्रीज के बीच में हुई? इंडिया एंड USA के बीच में हुई. 14th एडिशन था इस एक्सरसाइज का. यहाँ पे पूछ लिया गया है आपसे लोकेशन क्या रहेगी, तो उमरोई में हुई थी. उमरोई कहाँ पर है? मेघालय में, राइट. तो राइट ऑप्शन 5 बनता आपका. ये 3 वीक लॉन्ग एक्सरसाइज थी. 21 दिन लंबी आपकी एक्सरसाइज चली थी. 21 नवंबर से लेके 11 दिसंबर तक ये एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था. नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली साइंड अ पार्टनरशिप विद इंडियन शटलर HS प्रणॉय फॉर ब्रांड प्रमोशन. तो ये रहेगा फेडरल बैंक, राइट. फेडरल बैंक ने अभी रिसेंटली पार्टनरशिप की इंडियन शटलर HS प्रणॉय के साथ फॉर ब्रांड प्रमोशन. नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बिकेम द फ्लीट कमांडर ऑफ द इंडियन नेवीज वेस्टर्न फ्लीट? वो है रियर एडमिरल CR प्रवीण नैर, राइट. इनको अभी फ्लीट कमांडर अपॉइंट किया गया ऑफ इंडियन नेवीज वेस्टर्न फ्लीट. ये किनको सक्सीड करेंगे? रियर एडमिरल विनीत मैकार्टी को ये सक्सीड करेंगे, राइट, जो कि नवंबर 2022 में यहाँ पे फ्लीट कमांडर बने थे ऑफ वेस्टर्न फ्लीट. नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली री इलेक्टेड पेड्रो सैंचेज एज द प्राइम मिनिस्टर? तो पेड्रो सैंचेज कहाँ के प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली अपॉइंट किए गए, री इलेक्ट किए गए? वो हैं स्पेन के. ये इनका 2nd टर्म रहेगा. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड की मैनेजरियल पर्सन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक 3 साल के लिए?
तो वो है अशोक वासवानी, राइट। अशोक वासवानी यहाँ पे अपॉइंट किए गए डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड की मैनेजरियल पर्सन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक, एंड 3 साल के लिए यहाँ पे ये अपॉइंट किए गए। डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी, इन्होंने रिसेंटली सेकेंड फ्लाइट टेस्ट किया ऑफ द नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज फ्रॉम इंडियन नेवी के डैश मैरीटाइम हेलीकॉप्टर के साथ। तो क्या नाम रहेगा उस हेलीकॉप्टर का जिससे अभी रिसेंटली डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी ने रिसेंटली मिलकर एक सेकेंड फ्लाइट टेस्ट किया ऑफ नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज फ्रॉम इंडियन नेवीज हेलीकॉप्टर जो कि है सी किंग 42B। इस हेलीकॉप्टर से इसको टेस्ट किया गया था। नेक्स्ट, इन नवंबर इंडियन आर्म फोर्स इन्होंने पार्ट लिया इन डैश एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद ऑस्ट्रेलियन आर्मी ऑस्ट्रा हिंद। ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज का नाम रहेगा। इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्मी एंड ऑस्ट्रेलियन आर्मी के द्वारा इस एक्सरसाइज को में पार्टिसिपेट किया गया। अब आ जाता है लोकेशन। लोकेशन क्या रहेगी? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। एंड इस एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन था ये पूछा जा रहा है आपसे, तो सेकेंड एडिशन रहेगा इस एक्सरसाइज का जो भी कंडक्ट कराया गया। नेक्स्ट आ जाता है विच एडिशन ऑफ इंडो नेपाल जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज सूर्य किरण। सूर्य किरण, अभी ये एक्सरसाइज हुई इंडिया एंड नेपाल के बीच में ये एक्सरसाइज थी। क्या नाम है? इंडिया एंड नेपाल के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई, सूर्य किरण। पूछा जा रहा है कौन सा एडिशन था सूर्य किरण का, तो ये 17th एडिशन रहेगा सूर्य किरण का। फिर आ जाती है लोकेशन, तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। 17वीं, 16वां एडिशन इससे पहले नेपाल में हुआ था। नेक्स्ट, नवंबर में 9th एडिशन हुआ नेट पोलरेक्स एक्सरसाइज का। नेट पोलरेक्स 9th एडिशन था, करेक्ट। एंड ये नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज थी। इंडियन कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट कराई। कहाँ पर कराया गया इसको? गुजरात में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था, राइट। पॉल्यूशन को कंट्रोल में लाने का मेन एम था यहाँ पर। जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उन्होंने किनको सक्सीड किया, किनको रिप्लेस किया उस पोजीशन से, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम देखें पहला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप। ये एक स्टैग है, ये एक एडवाइजरी ग्रुप सेटअप किया गया था ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ के लिए जो कि आपकी लंग्स को इफेक्ट करती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको सेटअप किया गया था। पूछा जा रहा है इनमें से कौन अभी इसके मेंबर बने हैं, तो ये है प्रोफेसर सारंग दियो। ये आपके प्रोफेसर हैं ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट एट इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। एंड ये 15 मेंबर का ग्रुप रहेगा स्टैग, जिसमें एक मेंबर बने हैं सब प्रोफेसर सारंग दियो। नेम द एक्टर हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर ऑफ एनपीसीआई। एनपीसीआई के यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर किनको अपॉइंट किया गया? काफ़ी फेमस एक्टर हैं पंकज त्रिपाठी, राइट। ये एनपीसीआई के अभी रिसेंटली यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर के तौर पे अपॉइंट किए गए हैं ताकि सेफ्टी जो है यूपीआई की उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराई जा सके। एंड हम जानते हैं यूपीआई कितना एक इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन एक मेथड है जिससे हम पेमेंट की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इजीली। एंड इसको ग्लोबल स्केल तक ले जाने के लिए यहाँ पर ये सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो कौन किनको अपॉइंट किया गया एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया? वो रहेंगे वेंकट नागेश्वर चलासनी जी, राइट। एंड ये यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। मार्क करके चलेंगे, ठीक है। ये रिप्लेस किनको करेंगे? एनएस वेंकटेश को ये रिप्लेस करेंगे टू बी द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव। एंड एनएस वेंकटेश ये 2 टर्म तक कॉन्जिक्यूटिवली यहाँ पे सर्व कर रहे थे ऑफ 3 ईयर्स ईच, मतलब 6 साल के लिए। अक्टूबर 2017 से ये इस पोजीशन में थे। हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अभी रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर जो चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो वो कौन रहेंगे? KS मूर्ति, कोपू सदाशिव मूर्ति, ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने भेल के, करेक्ट। ये किनको सक्सीड करेंगे? नालीन सिंघल को ये सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। एंड नालीन सिंघल इस पोजीशन में सिंस जुलाई 2019 से थे। एंड कोपू सदाशिव मूर्ति इस पोजीशन पे कब तक रहेंगे? 28 फरवरी तक 2027 में इस पोजीशन पे रहेंगे। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं RBI के रिसेंटली?
वो है मनोरंजन मिश्रा। मार्क करके चलेंगे मनोरंजन मिश्रा। एंड मनोरंजन मिश्रा यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं आरबीआई के, राइट। ये 3 डिपार्टमेंट संभालेंगे, एनफोर्समेंट, रिस्क मॉनिटरिंग एंड एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन। Which organization has recently appointed Govardhan S. Rawat as doctor and Dr. Ajay Kumar Sood as the deputy managing directors for a tenure of 5 years? तो अभी रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने अपॉइंट किया गोवर्धन एस रावत को एंड डॉक्टर अजय कुमार सूद को एज द डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years? तो वो है नाबार्ड, राइट। नाबार्ड के यहाँ पर ये भी डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए हैं, 5 साल के लिए इस पोजीशन पे रहेंगे। एंड अजय कुमार सूद विल होल्ड दिस पोजीशन टिल 31st of August 2027. Next, which of the following personalities have been recently appointed as a part-time member of National Financial Reporting Authority? तो कौन है वो है आपके आर नारायण स्वामी एंड संजय कालापुर। इनको अपॉइंट किया गया एज द पार्ट टाइम मेंबर ऑफ NFRA का। संजय कालापुर की बात करें तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोजीशन पे थे ऑफ IDBI, राइट। एंड अगर बात करें 2018 से 2021 तक इन्होंने इंटरनेशनल काउंसिल मेंबर एट लार्ज फॉर अमेरिकन एसोसिएशन में भी पार्ट किया। नेक्स्ट, और ये दोनों यहाँ पर 3 साल तक रहेंगे इस पोजीशन पर। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट रिन्यूएबल्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर and managing director of Tata Power Renewables Energy Limited? दीपेश नंदा, राइट। दीपेश नंदा अपॉइंट किए गए प्रेसिडेंट रिन्यूएबल्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा पावर रिन्यूएबल्स एनर्जी लिमिटेड। दीपेश नंदा किनको सक्सीड करेंगे? आशीष खन्ना को सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट, Supreme Court Collegium had recommended additional judge Siddharth Roy Chaudhary for the appointment as the permanent judge of the Dash High Court. तो अभी रिसेंटली सिद्धार्थ रॉय चौधरी ये एडिशनल जज बन गए हैं। एडिशनल जज के तो ये एडिशनल जज सिद्धार्थ रॉय चौधरी, इनको अपॉइंट किया गया परमानेंट जज ऑफ विच हाई कोर्ट? ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी फ्रॉम इंडिया who has recently re-elected as a member of United Nations Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions for a period of 3 years. कौन रहेंगे वो हैं सुरेंद्र कुमार अधाना जी, राइट। इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है 3 टर्म के लिए, जो कि है 2024 से 2026 तक। इनकी पोजीशन 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो चुकी है, करेक्ट। मार्क करके चलेंगे। ACC एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ AS राजीव, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। इनकी जो टर्म है उसको 6 महीने से यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट, हाउ मैनी नोडल ऑफिसर्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इनको अपॉइंट किया गया टू एक्ट अगेंस्ट फिल्म पायरेसी ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। हम जानते हैं फिल्म्स की पायरेसी होती है, पहले ही उनको लीक कर दिया जाता है, उनकी सेकेंड हैंड कॉपीज़ बना के बेचा जाता है, करेक्ट। तो इस पायरेसी को रोकने के लिए एक कमेटी सेटअप की गई एंड उससे पूछा जा रहा है कितने नोडल ऑफिसर्स रहेंगे फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड CBFC, जिनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया ताकि वो इस जो पायरेसी हो रही है, फिल्म पायरेसी हो रही है, उसको रोक सकें। तो ये 12 नोडल ऑफिसर्स रहेंगे यहाँ पर। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल डायरेक्टर ऑफ डाबर इंडिया लिमिटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years? 5 साल के लिए यहाँ पर एडिशनल डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं डाबर इंडिया के? वो हैं सुशील चंद्रा जी, करेक्ट। ये 24th फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं इंडिया के, करेक्ट। एंड ये इस पोजीशन में रहेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, जो कि 2 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो गया टिल 1 नवंबर 2028 तक। सुशील चंद्रा जी की बात करें तो ये 1980 बैच के IRS ऑफिसर रहेंगे एंड ये प्रीवियसली चेयरपर्सन भी रह चुके हैं CBDT के, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली स्worn इन एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट कौन किए गए हैं अभी? वो है हीरालाल समारिया, राइट। हीरालाल समारिया ये सक्सीड किनको करेंगे? यशवर्धन कुमार सिन्हा को सक्सीड करेंगे, जिनका टर्म 3 अक्टूबर 2023 को खत्म हो गया एंड इनकी पोजीशन को यहाँ पे स्वॉन इन किया गया बाय द्रौपदी मुर्मू मैम, जो कि प्रेसिडेंट है इंडिया की। नेक्स्ट आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पर। पहला, व्हाट इज द प्राइमरी हैबिटेट ऑफ एम्परर पेंगुइन्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज? दूसरा, वेयर वॉज द 84th ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड?
तीसरा, व्हाट इज अरमाडो हु रिसेंटली वॉज मैंशनड इन द न्यूज। चौथा, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द रैंक ऑफ सूबेदार इन द इंडियन आर्मी। पांचवा, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम विच वॉज सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। अपने दोस्तों को, कजन्स को, रिलेटिव्स को, नेबर्स को, हर जगह ये वीडियो को शेयर कर दो ताकि उनको पता लग सके अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म अफेयर्स क्लाउड, जहां पर हम डेली बेसिस पे बड़े अच्छे से एक डिफरेंट तरीके से करंट अफेयर्स को समझते हैं। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.